This is Hazara division in the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Made up of 5 districts, Haripur, Abbottabad, Mansehra, Battagram and Kohistan. Its population in 2005 was more than 4.5 million. The majority of people here live in the rural areas, and like most of Pakistan, the region is far from homogeneous. Extreme poverty, low levels of literacy, and years of neglect have widened the divide between the urban and rural areas. But over the years, a quiet change is taking place in the hills of Hazara. Sangeet Development Foundation was founded by Umar Asghar Khan in 1990. With 15 years of activism behind him, Umar sought to give a voice to the most vulnerable groups in society. उमर ने जब संगी शुरू करने का सोचा, वो ऐसे कि जब इलेक्शंस में खड़े हुए थे उमर, तो वहाँ मौका मिला उनको काफ़ी देहातों में जाने का और गलियों में, छोटे शहरों में जाने का। तो वहाँ उन्होंने महसूस किया कि जीते ना जीते मगर काम करने की यहाँ ज़रूरत है। उनकी जो शनाख्त थी वो एक ऐसे नौजवान की थी कि जो वो कोई बड़े फ्यूडल ख़ानदान से नहीं थे, लेकिन वो एक जो है वो बाअसर और वेल ऑफ ख़ानदान से थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जोड़ा मेहनत करने वाले लोगों के साथ। Umar started Sangi from funds borrowed from his parents and with just one other colleague. 7 कुर्सियां और एक टूटी फूटी मेज एयर मार्शल असगर खान साहब से बतौर उधार मैंने ली, तो वह वहाँ बैठ गया। अब मुझे उमर साहब ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि तंजीमें बनानी है और काम करना है। Amongst the most vulnerable, there is one group that is almost completely absent in public space. 20 years ago, in the conservative Khyber Pakhtunkhwa, there were even more restrictions limiting women's presence in public spaces. For Sangi at that time, the challenge was twofold. First, to find young women who were willing to go and work with the communities, and secondly, to get the community to meet with the Sangi team. ख़वातीन को तो बिल्कुल इजाज़त नहीं थी घरों से बाहर जाने की, तंजीम साजी करने की, लेकिन न जाने ये क्या सीखेंगी, एनजीओ देने क्या सिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी उस तरह फंडिंग तो नहीं थी। हम लोग तो पैदल विजिट करते थे सारा दिन। एक ऐसा गांव भी था जहाँ पे शायद मैंने शेयर किया था आपको कि मैंने 13 विजिट किए थे पैदल, और उस गांव की ख़वातीन ने इंतहाई हमें परेशान किया, क्योंकि मर्दों की तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं थी कि आप तंजीम बनाएं। In the early years, Sangi's funds did not even cover a jeep, that most essential form of transport in this rugged mountainous region where roads can be treacherous. Traveling to far-flung villages was no less than an adventure, and often fraught with danger. जिस डाटसन में हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर साथ ही मुर्गियाँ भी थीं, बकरियाँ भी थीं, मर्द भी थे। बोरियों पे हम लोग बैठ के हमने सफ़र किया और निहायत ठंड में। और जब हम उस गांव में पहुँचे तो मतलब मुझे तो लग रहा था कि शायद दूसरे दिन मेरे लिए आना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर वही बात है कि जो कमिटमेंट थी हमारी और हर रोज़ वो बढ़ती जा रही थी। Our thrust is basically to provide a framework, a governance framework, which is just, equal, and has an equity of the people in it. And that is basically Sangi's vision as well as mission. To bridge the widening gap between state institutions and communities, a multi-tiered system starts at the village level, where VCs or village committees are set up. A women's VC is a prerequisite for Sangi to start work in any area.
ism nista damunga. Oh, sakul nista. This community organization is revisiting its village development plan. As they map out the village landmarks, new schools, shops, and health facilities have emerged. Another transformation has been a change in attitudes. 96 से यहाँ संघी ने पहला कदम रखा, उस दिन से लेकर आज तक हमारे इलाके में बहुत बड़ी अचीवमेंट और काफी हद तक चेंज आ चुकी है। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, यहाँ पर तंजीम के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बात एक सबूत के तौर पर नजर आ रही है कि मर्द और ख्वातीन एक प्लेटफॉर्म पर बहन भाइयों की तरह इकट्ठे बैठे हुए हैं। A group of village committees form Area Coordination Councils or ACCs, which design their area development plans and take up issues that concern the communities at the union and district levels. Health, education and livelihood are the most pressing issues. The impact of Sanghi's intervention has left imprints beyond the individual. संघी ने हमें कुछ शऊर बख्शा कि पानी स्टोर करने का तरीका बताया। उन्होंने हमें ये 2 तालाब बना के दिए हैं। ये संघी से लोन लेके कर्जा और ये जंगल का जो स्कीम चलाया था, ये जंगल चलाया, इससे हमें माशाअल्लाह ये रोजगार मिल गया। हम अपनी रोजी खुद अपनी भी पीसते हैं और गांव के लोगों का आटा पीस करके, और इससे हम उजरत लेते हैं माशाअल्लाह, और अपनी अच्छी बड़ी इनकम हो गई है। संघी ने मुझे पहले वो कहते रहे कि तुम स्कूल पढ़ो ना, फिर मुझे शौक नहीं आया है। जब उन्होंने मुझे कर्जा दिया तो संघ के उन्होंने कहा कि जब तक तुम नाम ना लिखोगी तो मैं तुम्हें कर्जा नहीं दूंगी ना। वैसे उसने कहा, लेकिन वो अनपढ़ों को भी दे देते, लेकिन उसका शौक था कि मैं पढ़ूं। फिर मैंने नाम लिखा है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा लिखती गई हूँ, तो अब मैं स्कूल में फिर बाद में दाखिला ले लिया। अब 9th में हूँ, तो अब तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र। अब जब कोई कहता तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, तुम अभी 9th में पढ़ी हो, मैंने कहा मेरे लिए यही सब कुछ है। हम तो वैसे इस तरह रह रहे थे जैसे रह रहे हैं। यहाँ में हमें प्रॉब्लम रहा है इसका रास्ते का ज़्यादातर। इसमें ये होता है कि हमारा कोई बीमार हो, मरीज़ हो, कुछ हो, तो उसको ले जाने के लिए हमें कभी चरपाई ढूंढनी पड़ती है, कभी आदमी इकट्ठे करने पड़ते थे जी, तो वो ऊपर गली में हम पहुँचाते थे, फिर वहाँ से कन्वेंस का कोई मसला करके हॉस्पिटल तक पहुँचाते। The village committee contributed the labor as well as 1/3 of the cost towards the road's construction, while the remainder was funded by Sanghi. तो अब इस रोड की सहूलत की वजह हमें इतनी खुशी है, इतनी ज़िंदगी में हमारी चेंजिंग आई है कि इतनी आई है कि हम लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ मिल चुका है। Sanghi has supported hundreds of schemes to benefit the rural poor. At the district level, Sanghi has made links between line departments and ACCs through various forums. The District Health Forum in Haripur is one such linkage. जब से ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फोरम बना और हमारे एक्टिविस्ट यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आकर बैठे हैं, तो 100% वो पोलियो कैंपेन कामयाब हुई हैं। और किसी गांव में, किसी यूनियन काउंसिल के फार फ्लांग जो एरियाज़ हैं, उनमें अगर किसी गांव में वो टीम नहीं जाती तो नेक्स्ट डे वहाँ का एक्टिविस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्फॉर्म करते थे कि जी यहाँ पर टीम नहीं पहुंची, और वो टीम दोबारा वहाँ पर जाती थी। Sanghi has